So children, shall we start now? All right. So what was left in the previous class? Stars twinkle whereas planets do not. ठीक है? Due to atmospheric refraction, stars twinkle. Stars twinkle means their brightness of light sometimes increases and sometimes it decreases. The brightness of stars sometimes increases and sometimes decreases. That is, twinkling of stars takes place because of refraction of light coming through them by different layers of atmosphere. So when the light rays from stars enters Earth's atmosphere, they undergo refraction through different optical density of atmosphere, different layers of atmosphere which have different optical density and different temperatures. As a result, sometimes the intensity of light reaching to our eyes increases and sometimes it decreases. Because of this, the stars appear to be twinkling in the night. Okay? But planets are very much close to us. As compared to stars, the distance of planets is very, very less from the Earth's surface. So, planets appear to be larger heavenly bodies, much larger heavenly bodies than that of stars. So, at the same time, large number of light radiations reaches to our eyes from planet. If the brightness of one light reaching to our eye by atmospheric refraction is decreased, at the same time, brightness of another light may be more. As a result, a balance is maintained and planets do not appear to be twinkling. A simple words में हम क्या बोल सकते हैं? Why planets do not twinkle? Planets do not twinkle because they are very much close to the Earth. ठीक है? Whereas stars twinkle because they are far away from the Earth. So write down, the stars twinkle at night. The stars twinkle at night because the starlight reaching our eyes, because the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously. Starlight reaching our eyes increases or decreases continuously due to atmospheric refraction. Due to atmospheric refraction. ठीक है? When the starlight enters the Earth's atmosphere, when starlight enters the Earth's atmosphere, it passes through different layers of atmosphere. It passes through different layers of atmosphere such that the optical density of air increases. Such that the optical density of air increases towards the Earth. Optical density of air increases towards the Earth. Light from a star travels from rarer medium to denser medium.
light from stars travels from rarer to denser layers bending every time towards normal. Bending every time towards normal. Full stop. Since the atmospheric layers are mobile, मूव करती रहती हैं, चेंज होती रहती है डेंसिटी एटमॉस्फेरिक लेयर्स की. Since the atmospheric layers are mobile, the optical density of layers and temperature and their temperature changes continuously. ठीक है. अब देखो, जब एटमॉस्फेरिक लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज करेगी और उसका टेम्परेचर भी चेंज करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार विल बी कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि रिफ्रैक्शन अलग अलग मैग्नीट्यूड में होगा. जब रिफ्रैक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में होगा तो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार विल आल्सो शिफ्ट. Besides this, the amount of light entering the Earth's atmosphere or the amount of light entering to our eyes will also change. Hence, stars appear twinkling in the night. ठीक है? Changes continuously. Therefore, apparent position of star and the amount of light from the star, reaching our eyes change continuously. This leads to twinkling of stars. किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें कि why stars twinkle? स्नेहा, any doubt? सर, डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है? लाइट तो प्लैनेट से भी आई रही होगी और रिफ्लेक्शन उसमें भी हो ही रहा होगा. नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ तो स्टार्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी. अपरेंट पोजीशन चेंज होगी तो थोड़ी देर के लिए स्टार जैसे पोजीशन चेंज हो रही, मतलब वो कैसा दिखेगा आपको, वाइब्रेटिंग दिखाई देगा. और जब स्टार वाइब्रेटिंग दिखाई देगा तो उससे आने वाली लाइट भी आपको वाइब्रेट होती दिखाई देगी, मतलब ट्विंकलिंग दिखाई देगी. इसके अलावा अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार also increases and decreases because the optical density of different atmospheric layers as well as their temperature changes. टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी अपने आप चेंज होगी. ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी. ठीक है, सो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम ज्यादा होगा. ऑप्टिकल डेंसिटी जिस समय बढ़ जाएगी उस समय रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बेंड कर जाएगी लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल. जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो बीच में क्या हुआ, गैप हो गया, तो इससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट रीचेस टू आवर आई विल आल्सो चेंज. तो पहली बात पोजीशन ऑफ स्टार चेंजेस, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग आवर आईज आल्सो चेंजेस, व्हिच टुगेदर लीड्स टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ऑलराइट सर, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही. हाँ, मैंने ये पूछा कि प्लैनेट और स्टार दोनों ही थोड़ा आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, तो लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन भी उतना ही हो रहा है, तो डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ रहा है, भले ही वो ज्यादा दूर है. हाँ सुनो, तो स्टार्स जो है, स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, देयरफॉर दे अपीयर टू बी लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसलिए द नंबर ऑफ रेज
that reaches to our eyes from stars are very very less. ठीक, इसलिए उनमें थोड़ा भी चेंज होगा तो वो आपको दिखाई देगा, बट प्लैनेट्स आर वेरी मच क्लोज टू अर्थ सरफेस। इसलिए अगर आप स्काई में देखेंगे तो प्लैनेट बहुत बड़े से होते हैं। जब प्लैनेट्स बड़े हैं तो ढेर सारी लाइट आ रही है। अगर मान लीजिए सम फ्रैक्शन ऑफ लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ गई, उसी समय दूसरे की कम हो गई, या दूसरे एक की कम हुई दूसरे की बढ़ गई, एवरेज इज मेंटेन्ड सेम। मून भी ऐसे ही है। मून आपको ट्विंकलिंग क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि मून इज वेरी मच क्लोज टू अर्थ सरफेस, और मून हमको काफी बड़ा दिखाई देता है, प्लैनेट से भी बड़ा दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा दिखाई देगा उससे उतनी ढेर सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है आपके पास। सो अगर कुछ रेज ऑफ लाइट की ब्राइटनेस बढ़ रही है, कुछ की घट रही है, तो एवरेज वो आपको फर्क नहीं पड़ता, वो सेम दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ट्विंकलिंग नहीं हो रही है। सर अगर कोई स्टार पास में होगा तो फिर? आपको सन दिखाई देता है क्या ट्विंकलिंग? नहीं। क्यों? सन भी तो स्टार है, बट सन इज वेरी मच क्लोज टू अर्थ सरफेस एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। ठीक है, सन तो बहुत पास में है अर्थ के, दूसरे स्टार्स बहुत बहुत लाइट ईयर्स दूर है। तो सन चूंकि पास में है इसलिए वो हमको ट्विंकल करता दिखाई नहीं देता है। सेम रीजन जो प्लैनेट्स के साथ है। ठीक है सर कोई स्टार पास में क्यों नहीं बनता? है? कोई स्टार पास में क्यों नहीं बनता? बन सकता है, अगर पास में बनेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे स्टार के लिए बात करने के लिए। कैसे? स्टार्स आर सन, सन इज ऑल्सो स्टार। सोचो एक सन अगर आपके पास में आ गया तो अर्थ रहेगी कि जल के राख हो जाएगी पूरी अर्थ? जल की राख हो जाएगी। तो सर कोल्ड स्टार आ जाए बस। गैलेक्सीज में तो बहुत से स्टार्स होते हैं, पास पास भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां उनके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने वाला कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट फायर के रूप में है सब। हम और आप ये बात कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम है, लाइफ के लिए सुटेबल टेम्परेचर है, ना बहुत ज्यादा है ना कम है, यहाँ पे जीवन हो सकता है। तो स्टार बन सकता है, अर्थ के पास भी बन सकता है, और जब कभी बनेगा तो उसमें अर्थ नहीं रहेगी, अर्थ विल गेट कन्वर्टेड इनटू फायर। ठीक है स्नेहा? सर सारे स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होता है क्या? बिल्कुल, ऑल स्टार्स आर वेरी वेरी हॉट। स्टार्स कैसे बनते हैं? स्टार्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ एटम बॉम्ब्स। चाहे आप अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ एटम बॉम्ब्स एक साथ फोड़ दो या एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करा लो, बराबर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, ऑल राइट, नाउ चेंज द पैराग्राफ। On the contrary, planets appear bigger than stars. On the contrary, planets appear bigger than the stars as planets are very close to Earth. As planets are very close to Earth as compared to stars. Planets are very close to Earth as compared to stars. Due to atmospheric refraction, when some points of planet appear brighter, when some point sources appear brighter, others appear dimmer. Others appear dimmer. Sir, due to atmospheric refraction, Some point sources appear brighter,
and others appear dimmer. At the same time, others appear dimmer. Therefore, as a whole, the brightness of planets remains same. The brightness of planets remains same, and they do not appear to twinkle. And they do not appear to twinkle. Okay. So children, these are some examples of atmospheric refraction. The last heading of this chapter is scattering of light. Scattering of light. पहले आप definition लिख लो. The phenomenon of bouncing of OFF, bouncing बाद OFF लिखना, ठीक है? Bouncing of फिर single OF लिखना. The phenomenon of bouncing of electromagnetic radiations by atoms and molecules, bouncing of atoms, light radiations or electromagnetic radiations by atoms or molecules of the medium. Atoms or molecules of the medium is known as scattering of light. So, what is scattering of light? The phenomenon of bouncing of electromagnetic radiations on striking atoms and molecules of the medium. जैसे, for example, if this is the incident ray of light, if this incident light, it strikes a microscopic particle, very small particle, say atom or molecule, then these light radiations, they bounce off. इससे टकरा के ये इधर उधर बाउंस कर जाते हैं. This phenomenon of bouncing of light radiations upon striking microscopic particles like atoms and molecules, which are microscopic in nature or very small in nature, is known as scattering of light. तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? स्कैटरर. This molecule is scatterer of light. ठीक है? और ये लाइट रेडिएशन जो निकली है, स्कैटर्ड लाइट. स्कैटरिंग होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? The essential condition for scattering of light is that the wavelength of electromagnetic radiation or light radiation must be must be larger than that of the diameter of the particle. स्कैटरिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि जो भी एटम और मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं, उनकी डायमीटर या उनकी साइज लाइट की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए. अगर लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हुई साइज एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो स्कैटरिंग नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा. रिफ्लेक्शन.
ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के लिए कंडीशन क्या है कि द साइज ऑफ द स्कैटरर और साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए एंड साइज मीन्स डायमीटर of the particle must be very very small. Then bouncing off of light radiation takes place, which is called scattering. Otherwise reflection will take place. All right, so there was a physicist whose name was Lord Rayleigh. ठीक है, लॉर्ड रेले ने क्या किया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टडी की एंड ही फाउंड दैट द intensity of scattered light was inversely proportional to fourth power of wavelength of the light. That is, intensity of light I is proportional to 1 upon wavelength lambda to the power 4. अब बड़ी वेवलेंथ है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम होगी। वेवलेंथ अगर कम है, छोटी वेवलेंथ है, तो स्कैटर्ड लाइट जो होगी उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ज्यादा होगी। सो राइट डाउन आफ्टर दिस स्कैटर, ये फिनोमिना लिख लिया, उसका लिखिए रेलेस इलास्टिक स्कैटरिंग। नाम क्या है? Rayleigh's elastic scattering. Rayleigh's elastic scattering. स्पेलिंग है RAYLEIGH'. Rayleigh's elastic scattering. ठीक है, राइट डाउन। लॉर्ड रेले, सर साइड प्लीज। यस, लॉर्ड रेले after a series of experiments, Lord Rayleigh, after a series of experiments, found that the intensity of scattered light ब्रैकेट में लीजिएगा IS, S का मतलब स्कैटर्ड लाइट, I मतलब intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength of the scattered light. ठीक है, where IS stands for intensity of scattered light. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength of scattered light. That is, IS equals intensity of scattered light and lambda wavelength of light. Wavelength of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है सर? कैंडेला। क्या? ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है? कैंडेला, CD, कैपिटल C स्मॉल d। स्कैटरिंग लाइट है या फिर स्कैटर्ड लाइट है? IS स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मतलब स्कैटरिंग के बाद जो लाइट बनी। Okay, after this write down note
सर ये जो वेवलेंथ है, ये जो वो लाइट आ रही थी उसकी है? क्या बोल रही हो? जो वेवलेंथ है वो जो लाइट आ रही है उसकी है? हाँ, जो लाइट आएगी उसी की तो स्कैटरिंग होगी ना। नहीं, स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ है क्या? अरे स्कैटर्ड लाइट, इंसिडेंट लाइट, लाइट विल बी सेम। जैसे अगर रेड कलर की लाइट इंसिडेंट है तो स्कैटर्ड लाइट भी तो रेड ही रहेगी ना। ठीक अच्छा। है, हाँ। इंसिडेंट लाइट, और अगर आप रेड की देखोगे, रेड इज इंसिडेंट लाइट, देन स्कैटर्ड विल आल्सो बी रेड। इफ ब्लू इज इंसिडेंट लाइट, देन स्कैटर्ड विल बी ब्लू लाइट। उसको आप इंसिडेंट बोलो या स्कैटर्ड बोलो, इसकी बात। सर स्कैटरिंग से स्पीड का डिफरेंस नहीं आता? क्या बोले बच्चे? स्कैटरिंग से स्पीड का डिफरेंस नहीं आता? नहीं, इंटेंसिटी का आता, स्पीड का नहीं आता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन वन थिंग। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी, मीडियम। मीडियम डेंसिटी पे। ऑल राइट, आफ्टर दिस नोट, देख लीजिए नोट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट depends upon the relative size of the scatterer. Depends upon the relative size of the scatterer compared to the wavelength of the light. Relative size of the scatterer compared to wavelength of the light. For example, for x is very smaller than lambda. x का मतलब क्या हुआ? साइज ऑफ स्कैटर, कहीं भी आप अलग से लिख लीजिए। x इक्वल्स साइज ऑफ स्कैटर, कहीं भी आप लिख लीजिए अलग से। ठीक है, फॉर x इज वेरी लेस देन अल्फा, सॉरी लैम्डा, that is when the size of scatterer is much less than the wavelength. That is when the size of scatterer is much less than the wavelength, Rayleigh's scattering is valid. Rayleigh's scattering is valid मतलब Rayleigh's scattering होगी। And consequently the intensity of that light will be maximum. Intensity of that light will be maximum, which will have, क्या बताओ? Intensity of that, smallest wavelength, which has least wavelength. least wavelength, correct. The intensity of that light will be maximum, which has least wavelength. Second point, when x is much larger than wavelength of light lambda, that is the size of scatterer is much larger than the wavelength. That is the size of scatterer is much larger than the wavelength of light. Rayleigh's scattering is not valid. Rayleigh's scattering is not valid. Consequently,
all wavelength will be scattered equally. Consequently, all wavelength will be scattered equally. So children, this is the conceptual understanding of scattering. ठीक है, अब स्कैटरिंग में अगर आप बात करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ क्या क्या है? ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ ओशियंस, white color of clouds, sun looks reddish during sunset and sunrise, danger signals are made red, and Tyndall effect. ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं which are based on scattering of light. ठीक है, so examples of scattering of light from daily life. सर हाँ जी, सर अगर स्कैटरर बड़ा होगा तो आपने बोला रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन हो गया मतलब सारी वेवलेंथ का बराबर स्कैटरिंग हो गई, सब एक साथ निकल गई रिफ्लेक्ट होके। इसलिए कोई भी कलर ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, स्कैटर की साइज बड़ी है तो गई उससे सारी इक्वली स्कैटर हो गई, मतलब सारी क्या हो गई, रिबाउंस होके चली आई। तो जो स्कैटर्ड लाइट रहेगी वो व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी, कलर चेंज नहीं होगा। पार्टिकल साइज अगर बहुत छोटी है तो किसी एक वेवलेंथ की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और वही कलर आपको दिखाई देगा, बाकी कलर दिखाई नहीं देगा वहां पे। सर तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क आएगा जब बड़ा होगा? वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ओके ओके, नाउ एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। First example, blue color of sky, blue color of clear sky. Write down, blue color of clear sky is due to Rayleigh's scattering. Blue color of clear sky is due to Rayleigh's scattering. Light rays while traveling from Earth's atmosphere, light rays while traveling from Earth's atmosphere get scattered from the atoms and molecules of air. ठीक है, since among primary colors blue color has minimum wavelength, बाकी तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग तो वायलेट की होगी, लेकिन वायलेट कलर आसमान में दूर से दिखाई देते ही नहीं, वो ऑलमोस्ट कलर जैसा हो जाता है या ब्लू ही रहेगा। Since among primary colors blue color has minimum wavelength, so it scatters the most and the intensity of blue color light
becomes maximum and the sky appears blue. The sky appears blue. अच्छा, एक और इसमें नोट लिख लीजिए अब आप, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है नोट. Since the wavelength of blue color is roughly half, since the wavelength of blue color is roughly half as compared to wavelength of red color, is roughly half as compared to wavelength of red color. Therefore, intensity of scattered blue light is about, therefore intensity of scattered blue color is about 2 to the power 4 or 16 times 2 to the power 4 times or 16 times more than that of red light. Sir, please repeat. कहाँ से? Sir, intensity of scattered उसके आगे से. Intensity of scattered blue light is 2 to the power 4 or 16 times larger than the red light. कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लेते हैं कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी रेड कलर की इंटेंसिटी से कितने टाइम्स ज्यादा होती है, तो 16 टाइम्स या 2 to the power 4 टाइम्स. कैसे हुआ? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon lambda to the power 4. अब लैम्डा ऑफ ब्लू कलर इज हाफ, यहाँ भी हो गया हाफ. 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हो गया, ये 2 पर चला गया 2 का पावर 4. ठीक, 1 का पावर 4 मींस कितना हुआ 1, ये हो गया 2 का पावर 4. सो इंटेंसिटी ऑफ रेड ब्लू कलर इज 2 to the power 4 times or 16 times larger than that of red light. ठीक है. Another note, very important, that came in last year. ये लास्ट ईयर के ही बोर्ड एग्जाम में आया था, वो भी आप लिख लीजिए. If the earth had no atmosphere, if the earth had no atmosphere, no color of sunlight would be scattered. If the earth has no atmosphere, no color of sunlight would be scattered. तो क्या होगा बच्चों, जब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो स्काई आपको कैसा दिखाई देगा? वाइट, डार्क, ब्लैक. सर हमें दिखाई एकदम ब्लैक, अंधेरा, क्योंकि जो भी आसमान में उजाला तो कुछ दिखेगा ही नहीं. सर दिखेगा ही नहीं. हाँ, दिखेगा नहीं. डार्क का मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरा जैसे रात में दिखाई देता है बस. सर हम लोग जिएंगे कैसे मगर फिर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो? अरे हम वहां तक की बात नहीं है, हम तो सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, जिएंगे नहीं तो देखेंगे भी नहीं, तो सब कुछ ब्लैक ही है, ब्लैक ही ब्लैक है. ठीक है. इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, नो कलर ऑफ सनलाइट वुड बी स्कैटर्ड एंड द स्काई वुड अपीयर ब्लैक इन द डे टाइम. वी वुड डाई. फर्स्ट ऑफ ऑल एकला विल डाई and the sky would appear black in the daytime. उसके बाद मेरा नंबर है, appear black in the daytime as it does at night. जिस तरीके से रात में आसमान काला दिखाई देता है उसी तरीके से काला दिखाई देगा स्कैटरिंग नहीं होगी तो. ठीक है, चाहिए था ना. स्नेहा फिर से बोलो. वाइट दिखना चाहिए था ना. व्हाइट क्यों दिखेगा? रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है.
Can you see light radiations? No. स्नेहा, मतलब क्या तुम लाइट देख सकती हो? नहीं बस जिस चीज को देख नहीं सकते वो ब्लैक है। सर, बट उसकी लाइट तो वाइट है ना सन की। सन की लाइट व्हाइट नहीं, व्हाइट तो है क्योंकि उसमें सारे कलर्स हैं, लेकिन वो सारे कलर्स आपको तभी दिखाई देते हैं जब उसकी स्कैटरिंग होती है। अब जैसे आप कमरे में बंद हो, ठीक है, एक कमरे में बैठे हो, सारी अपने ट्यूबलाइट वगैरह सब बंद कर दो, ठीक। अब बाहर सनलाइट तो बाहर है, फिर भी आपके कमरे में परफेक्ट डार्क नहीं होता। क्यों परफेक्ट डार्क नहीं होता? आपको कुछ तो दिखाई देता है ना कमरे के अंदर, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली नहीं आ रही, स्कैटर्ड लाइट आपके कमरे के अंदर आ रही है। एयर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल से जो लाइट स्कैटर्ड हुई, वो स्कैटर्ड लाइट आपके कमरे तक आ रही, इसलिए कमरे के अंदर परफेक्ट डार्क दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर चारों साइड हमने सारी खिड़कियां वॉल में सबने क्या लगा दिया, अगर ब्लैक कर्टन लगा दिए, तो बाहर की स्कैटर्ड लाइट भी नहीं आ पाएगी, तो अंदर कमरा कैसा हो जाएगा? बोलो। ब्लैक। 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 ब्लैक, ठीक है। सो आगे लिख लीजिए आप, एंड द स्काई वुड अपीयर ब्लैक इन द डे टाइम एज डज द नाइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जनरली जो जेट प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, वो जेट प्लेन्स कहां पे उड़ाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर में काफी हाइट पर उड़ाए जाते हैं, ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर कितने किलोमीटर तक है एटमॉस्फेयर में? 16। हाँ ठीक है, 12 to 16 किलोमीटर्स। तो जेट प्लेन को ओजोन लेयर के ऊपर उड़ाए जाते हैं ताकि वो ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचा सके। और ओजोन लेयर के ऊपर एयर डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए स्कैटरिंग बहुत कम होती है। क्योंकि स्कैटरिंग बहुत कम हो पाती है ऊपर, इसलिए जो जेट प्लेन के फाइटर प्लेन्स के जो पायलट्स होते हैं, वहां पे उनको स्काई ऑलमोस्ट डार्क दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर डेंसिटी बहुत कम है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत कम हो पाती है, इसलिए जेट प्लेन्स के जो पायलट होते हैं उनको ऊपर स्काई डार्क दिखाई देती है। लेकिन जैसे वो नीचे आते हैं ओजोन के नीचे, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, तो फिर से उनको उजाला दिखाई देने लगता है, क्योंकि वहां पे एयर डेंसिटी ज्यादा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा होती है। सर Alright? ओजोन के ऊपर क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है, जो फ्यूम निकलता है, उसमें क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है। इसलिए जेट प्लेन के जो पायलट्स होते हैं, दे आर एडवाइज्ड टू फ्लाई जेट प्लेन्स अबव ओजोन। हम जानते हैं कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, तो जो उससे एग्जॉस्ट निकलेगा ओजोन के ऊपर है तो और ऊपर चला जाएगा, ओजोन को नुकसान नहीं होगा। ओजोन के नीचे उड़ाएंगे तो उसका जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर उठेगा और ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन विल टेक प्लेस। ऑलराइट, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई अपीयर्स डार्क to passengers flying at very high altitudes. Sky appears dark to passengers flying at very high altitudes. As scattering is not prominent at such heights. As scattering is not prominent at such heights. वो ग्रेट हाइट्स पे, ज्यादा ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे स्कैटरिंग ज्यादा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एयर डेंसिटी कम है, एयर के मॉलिक्यूल्स, एटम्स वहां पे कम है। इसलिए पैसेंजर्स को स्काई कैसी दिखाई देती है? डार्क दिखाई देती है हाई एल्टीट्यूड्स पे। बट एट लोअर एल्टीट्यूड्स दे कैन सी ब्राइटर स्काई। ऑलराइट, देन सेकेंड एग्जांपल, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। ब्लू कलर ऑफ स्काई के बाद अनदर एग्जांपल, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स।
ये क्लाउड्स हमको व्हाइट दिखाई देते हैं बच्चों, ज्यादातर, थोड़ा बहुत तो अलग अलग कलर दिखते हैं। क्यों होता है? बिकॉज क्लाउड्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। हाइट ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स के ऊपर क्लाउड्स नहीं होते, ठीक है। जब वो नीचे हैं क्लाउड्स, तो क्लाउड्स में और क्या प्रेजेंट है? वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, आइस के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, whose size is much larger than the wavelength of light falling on them, ठीक है। जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, आइस के पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उनकी साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट रेज आ रही सन की, उससे उसकी वेवलेंथ से ज्यादा होती है साइज। When the size of scatterer is larger than that of the wavelength of light falling on it, then Rayleigh's scattering is not valid. As a result, all the light rays are scattered equally and the scattered light appears white. क्योंकि किसी भी लाइट कलर का वेवलेंथ का ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हुई, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बढ़ी, सबकी ऑलमोस्ट बराबर बढ़ी, इसलिए व्हाइट की व्हाइट ही रहता है। The only reason is clouds contain bigger particles whose size is greater than that of wavelength of light. Hence, Rayleigh's scattering is not valid. Write down. Clouds सर are वाइट लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? white light में 7 different types of wavelengths होती हैं, which ranges from 4 into 10 power 7 angstrom to 4 into 10 power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 meter. 4 से 8 into 10 power minus 7 मीटर के बीच में अलग अलग वेवलेंथ्स होती है, जो अलग अलग कलर्स की होती है, ठीक है। व्हाइट की कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं होती। व्हाइट के अंदर 7 टाइप्स ऑफ कलर्स है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग, सब बराबर अमाउंट में कंपोजिशन में मिलती है तो व्हाइट बना रहता है। अगर बराबर नहीं है, कोई भी ज्यादा हो गया, जो ज्यादा हो गया उसी का कलर आ जाएगा। ओके Right? सर। The clouds are at much lower height. ठीक है। They consist of large dust particles, water droplets, and ice particles. As the size of particles is much larger than the wavelength, as the size of particles is much larger than the wavelength of the light, Rayleigh's scattering is not valid. So can you please repeat? As the size of scattered particles is much larger than the wavelength, Rayleigh's scattering is not valid. Rayleigh's scattering is not valid. Rather, all wavelengths are scattered equally. Rather, all wavelengths are scattered equally, and hence clouds appear white. And hence clouds appear white. Because all scattered light mix in equal proportions. सर स्टार्टिंग की 2 लाइन रिपीट कर दीजिए। क्या फिर से बोलो, कहां से? स्टार्टिंग की 2 लाइन। स्टार्टिंग की? हाँ। As clouds are at much lower height. The clouds are at much lower heights. They consist of large dust particles, water droplets, and ice particles.
So children, now this chapter will need one more period, and after that it will get over. अभी तो हो नहीं पाएगा आज. So time is over. We'll take one more period on 3rd, and then we'll finish this chapter.